Example number 4. The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are as follows: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 and 3. Find the mode of the data. ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिया गया है 10 क्रिकेट मैचेस में एक बॉलर ने कितने विकेट्स लिए हैं. यहाँ पे वो नंबर ऑफ विकेट्स दिए गए हैं हमें, अलग अलग मैच के कितने विकेट्स हैं. ओके हमें इस डेटा का मोड फाइंड करना है. ओके सो मोड फाइंड करने के लिए हम पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. ओके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके हम ये बनाते हैं एंड देन विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट द मोड इज वेरी इजीली. लेट अस स्टार्ट दिस. सो अब हम इस टेबल के अंदर ऊपर वाले कॉलम, ऊपर वाली रो में नंबर ऑफ विकेट्स को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर. सो द लोएस्ट लीस्ट नंबर ऑफ द विकेट दैट हैज बीन टेकन बाय द बॉलर इज 0 and the highest number of wickets are, see, we know that 6 is the highest number of wicket and 0 is the lowest number of wicket. Let us start it with that. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So number of matches in which the bowler has taken 0 wickets are just 1. Okay, so यहाँ पे number of matches हो जाएगा 1. So let us find the number of matches where the bowler has taken just 1 wicket. So it is just 1 match. Okay, so यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. For 2 wickets there are 1, 2 and 3 observations, 3 matches. So we'll write 3 over here. For 3 wickets we have just 2 observations. Okay, this and this. So we'll write 2 over here. For 4 number of wickets we have just 1 match. Okay, so 1, 5, 1 and again 6 is 1. See, so यहाँ पे 1 plus 1, 2 plus 3, 5 plus 2, 7, 8, 9 and 10. 10 matches का हमारे पास total आ गया. Now we have to find the mode of the data. So the mode of the data is the data which has got the maximum frequency. So 2 wickets have got 3 matches. So the bowler has taken 2 wickets in 3 matches. So the highest frequency is 3. So this is the mode of the data. So 2 becomes the mode of the data. Let us write our answer and conclude the question. The mode of the data is 2 wickets. And this is the answer. Let us take the next sum now. Example number 5. A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in following frequency table for the number of family members in a household. Family size 1 to 3, number of families 7. Family size 3 to 5 members, number of families 8. Family size 5 to 7 members, number of families 2. Family size 7 to 9 members, number of families 2. And family size 9 to 11 members, number of families 1. Find the mode of this data. हमें इस डेटा का मोड फाइंड करना है. ओके सो लेट अस स्टार्ट द सम. यहाँ पे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी है 8. ओके एंड द क्लास, इसके साथ जो क्लास कॉरस्पॉन्डिंग हो रही है वो है 3 to 5. सो हमारी जो मोड वाली क्लास होगी वो यही वाली क्लास होगी. इसी में से हमें मोड मिलने वाला है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. Highest frequency is equal to 8 and highest frequency class is equal to this 3 to 5. ओके सो ये लिखने का पॉइंट ये था कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा मोड इसी में से मिलने वाला है. ओके सो लेट अस स्टार्ट दैट. मॉडल क्लास इज 3 to 5. ओके मॉडल क्लास, जो जिस क्लास में मोड मिलता है उसे मॉडल क्लास बोलते हैं. मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3 to 5. ओके नाउ द लोअर लिमिट इज इक्वल टू 3 एंड अपर लिमिट. लोअर लिमिट को हम L से डिनोट कर देते हैं एंड अपर लिमिट U इज इक्वल टू 5. ओके हमने लोअर लिमिट नोट कर लिया 3, अपर लिमिट U. अभी इसका क्लास साइज कितना है 2. क्लास साइज
जिसको हम h से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 8 और इसको हम डिनोट करेंगे f1 से. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, हम फॉर्मूला की डिटेल्स ले रहे हैं तो हमारी इससे प्रीसीडिंग क्लास है 1:3 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, so the preceding class is 1 to 3 members and the frequency of this class is 7. Okay, frequency of the class preceding the model class, frequency of preceding class, of course we are talking about preceding to model class. So यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 और इसको हम डिनोट करते हैं f0 से. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, यानी कि जो उसके बाद जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास इंटरवल है वो है 5 to 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास और सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इज 2. फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ कोर्स यहां पे हम बात कर रहे हैं इसी की, टू द मॉडल क्लास. ओके, सो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास इट इज 2 एंड इट इज गिवन एज f2. ओके, अब हम इसको फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे, हमें जो जो चीजें चाहिए थी फॉर्मूला के लिए वो हम प्लेस कर देंगे एंड लेट अस नाउ राइट द फॉर्मूला एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन. सो यहां फ्रेंड्स मोड का फॉर्मूला बनता है L प्लस इंटू ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. और हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज हैं अवेलेबल हैं. लोअर लिमिट जो कि L से डिनोट किया गया है दैट इज इक्वल टू 3. ओके, अब हम यहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यूज ले लेते हैं. f1 माइनस f0, f1 हमारे पास है 8, f0 है 7 अपॉन 2 इंटू f1, 2 इंटू 8 माइनस f0 दैट इज 7 माइनस f2 दैट इज 2. ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लास साइज यानी कि h से, जो कि हमारे पास यहां पे 2 है. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने से हमें इस डेटा का मोड मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 7 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.286. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, द मोड ऑफ द डेटा गिवन इज 3.286. द मोड of the given data is 3.286 and this is the answer. Let us take the next sum now. Example number 6. The marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given in table 13.3 of example 1. Find the mode of this data. Also compare and interpret the mode and the mean. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उसी टेबल को रिप्रोड्यूस किया है. क्लास इंटरवल 10 to 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2. क्लास इंटरवल 25 to 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3. क्लास इंटरवल 40 to 45, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7. क्लास इंटरवल 55 to 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6. Class interval 70 to 85, number of students 6 and class interval 85 to 100, number of students 6. Okay, so अभी by looking at the table and the number of students in the respective class intervals, हम ये कह सकते हैं कि हमारी class with the mode would be this class. Why? Because this class has the maximum frequency that is 7. Okay, so the model class is 40 to 45. Model class is equal to 40 to 55. यहां पे अब हमें चाहिए लोअर लिमिट L.
लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 40. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जिसको हम F1 कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जिसको हम F1 कहेंगे वो है 7. फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जिसको हम F0 कहेंगे वो है 3. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास जिसको हम F2 कहेंगे वो है 6. ओके, नाउ वी हैव फाउंड व्हाट इज द मॉडल क्लास, व्हाट इज द लोअर लिमिट, what is F1, F0 and F2. Now let us find the answer, the mode. Here हम यहाँ पे class size भी लिख देते हैं जिसको हम H से denote करते हैं. Class size which is denoted by H is equal to 15. अब mode का क्या formula है? Let us write it over here. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. ओके, सो यहां पे हमारी लोअर लिमिट क्या है 40 प्लस F1 minus F0. F1 is 7, F0 is 3. So we'll write here 7 minus 3 upon 2 into F1, that is 2 into 7 minus F0, that is 3 minus F2, that is 6 into class size, that is 15. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. So this is equal to 40 plus 7 minus 3, 4 upon 2 sevens are 14 minus 3 minus 6 into 15, and this is equal to 52. So the mode of the data is 52. The mode of the data is 52. So we can interpret it as the maximum number of students scored 52 marks. The maximum number of students scored 52 marks and average marks are 62, and this is the answer. Let us take the next question. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज. और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है. और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें. फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड.